All last lecture we have to discuss Cauchy and root test. Okay. Let summation un be a positive term series and limit n tends to infinity. Nth root of un is equal to L. Okay. Nth root of un is equal to L. This was last point कोण होता आपला D'Alembert ratio test. Un plus 1 upon un is equal to L आपण कन्सिडर केलं. ओके. सेम इथं पण काय nth root of un. nth root म्हणलं की तर Cauchy nth root. If L is less than 1, then series convergent. If L is greater than 1, the series is divergent. If L is equal to 1, then test fail. Remark, this series is useful if example contains nth power. जर एक्झाम्पल म्हणजे जर nth पॉवर असेल तर काय करायचं हे रूल यूज करायचं. ये Cauchy nth root टेस्ट यूज करायची. और nth root मीन्स क्या होगा 1 अपॉन n. nth root मतलब 1 अपॉन n. देखो एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है example on Cauchy nth root test. Summation un is equal to 2 raised to 3n upon 3 raised to 2n. A raised to m n असा असेल a raised to m n. आपण असं म्हणू शकतो a raised to m ब्रॅकेट raised to n. a raised to m ब्रॅकेट raised to n केस केलेला आहे तर 2 raised to 3 ब्रॅकेट raised to काय n आहे. ओके 2 raised to 3 2 raised to 3 bracket raised to n. 2 raised to 3 bracket raised to n upon 3 raised to 2 bracket raised to n. Okay. मग काय केलं मी फर्स्ट 2 raised to 3 bracket raised to n आणि 3 raised to 2 bracket raised to n. म्हणजे काय 2 raised to 3 म्हणजे काय असणार 8 आणि 3 raised to 2 याचा अर्थ काय असेल 9. ओके 8 raised to n आणि 9 raised to n. नेक्स्ट 8 upon n bracket raised to n. Taking nth root on both sides, nth root of n is equal to 8 upon 9. ऍक्च्युअली मध्ये फर्स्ट काय होतं इथं म्हणजे तुम्हाला लिहून घेताना सोपं जाईल. 8 upon 9 raised to n आहे by taking nth root. कारण आपलं कशासाठी पाहिजे nth root of un is equal to 8 upon 9 raised to n. Nth root means 1 up raised to 1 upon n. n will get cancelled, remaining 8 upon 9. This is less than 1. If L is equal to less than 1, then series is convergent. Therefore, summation un by using Cauchy nth root test, summation un is convergent. By using Cauchy nth root test, summation un is convergent. लिहून घ्या. हे झाले.
1 minute. Next example क्या? Summation un is equal to 1 plus 1 upon square root of n bracket raised to minus n raised to 3 by 2. बघा सॉल्व करणार आहे. Taking nth root on both nth root. Taking nth root. Therefore, nth root of un is equal to 1 plus 1 upon put the n क्या minus n raised to 3 by 2 into the 1 upon n. तो सॉल्व करना होगा 1 plus 1 upon nth root bracket raised to minus n raised to 3 by 2 आणि इथलं n काय ना y सिम्प्लिफाय केल्यानंतर त्याला वाटलं असं ब्रैकेट मध्ये n raised to 3 by 2 into द डिवाइड ला n है. अगर ये डिनोमिनेटर में n है इसको ऊपर लेके जाओ तो इसको ऊपर n लेके जाने के बाद क्या हो जाएगा n raised to minus 1. देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर में क्या होगी इसके सब्ट्रैक्शन एडिशन जो है वो होगा. तो 3 by 2 minus 1 क्या हो जाएगा 1 by 2 मतलब माइनस n raised to 1 by 2 which is equal to यहाँ पे देखो ये निगेटिव है इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे. तो देखो 1 plus 1 अपॉन रूट n ब्रैकेट रेस्ट क्या हो जाएगा ये n रेस्ट 1 अप बाय 2 है. इसका मतलब भी क्या है रूट n ही है. ओके तो अब इस पर लिमिट अप्लाई कर दो. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी nth root of un is equal to 1 upon e. 1 upon e and 1 upon e is less than 1. Therefore, by using
Cauchy nth root test summation un is convergent. घेऊन घ्या. फर्स्ट un is equal to consider करा n upon 2n plus 5 bracket raised to n. Taking nth root nth root of un is equal to n upon 2n plus 5 bracket raised to n and whole bracket raised to cancel 1 upon n. Okay, 1 upon n, 1 upon n will get cancelled. The remaining part n upon 2n plus 5. Okay, first is simplify this denominator. तो यहाँ पे क्या करना होगा n अपॉन, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा ना, तो नॉट डिफाइंड है, वो सॉल्व नहीं होगा. सिर्फ इन्फिनिटी है तो डाइवर्जेंट है, लेकिन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मतलब वो आपको नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब आपको डाइवर्जेंट है कॉन्वर्जेंट आप नहीं बता सकते उसको. ओके, तो इसका आपको सिंप्लीफाई करना होगा. कैसे सिंप्लीफाई करना है, 2n प्लस 5 है ना, तो इसमें से n कॉमन निकाल दो. 2 प्लस क्या हो जाएगा 5 अपॉन n विल गेट कैंसल. 1 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन n. Good. लिमिट अप्लाई करा था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, nth root of un is equal to 1 upon 2, because 5 upon n is equal to क्या हो जाएगा 0. 1 upon 2 is less than 1 by using Cauchy nth root test. Summation un is convergent. Next point, alternating series. Alternating series a series in which the terms are alternatively positive and negative is called alternating series. म्हणजे अल्टरनेटिव्हली काय होतं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे अल्टरनेटिंग सिरीज. A series in which the terms are alternatively positive and negative is called alternating series. Next है Leibniz test. Next का था Leibniz test. In the series, given series is alternating series. फर्स्ट कंडिशन काय असेल, in the series given series is alternating series. First series काय पाहिजे alternating series. Second term काय पाहिजे each term is less than the precedent term. Each term is less than the precedent term. म्हणजे एक टर्म अशी घ्यायची निवडायची त्या पाठीमागे घेतली तर ती काय पाहिजे लेस पाहिजे. Each term is less than the preceding term. And third condition है limit n tends to infinity, un is equal to 0. By using Leibniz test un is convergent. तर हे तीन कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तर काय असेल un is convergent. आणि नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट क्या होगा, गिवन सिरीज अल्टरनेटिंग सिरीज, ईच टर्म इज लेस दॅन द प्रेसिडेंट टर्म. पहिल्या टर्म पेक्षा ही टर्म काय पाहिजे लहान पाहिजे. ओके, नेक्स्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un is equal to 0. By using Leibniz test summation un is convergent. By using limit कौन सी टेस्ट है ये Leibniz टेस्ट. तर यामध्ये तीन कंडिशन आहे. पहिली कंडिशन आहे काय गिवन सिरीज इज अल्टरनेटिंग सिरीज. सेकंड काय ईच टर्म इज लेस दॅन द प्रेसिडेंट टर्म. थर्ड काय लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0.
नेक्स्ट पॉइंट है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस. An alternating UN is said to be absolute convergence if mod UN is convergent. An alternating UN is said to be absolute convergence if mod UN is convergent. An alternating UN is said to be conditionally convergence if mod UN is divergent and UN is convergent. लिहून घ्या बघा कंडिशन काय सिंपल आहे. अन अल्टरनेटिंग युएन इज सेड टू बी ॲब्सोल्यूट. व ॲब्सोल्यूट कॉन्व्हर्जंट कधी असणार आहे जर मॉड युएन इज कॉन्व्हर्जंट, मॉड युएन इज कॉन्व्हर्जंट देन काय असेल ॲब्सोल्यूट कॉन्व्हर्जन्स. आणि इफ मॉड युएन इज डायव्हर्जंट देन चेक काय करायचं युएन चेक करा, युएन कॉन्व्हर्जंट असेल देन कंडिशनली कॉन्व्हर्जन्स. देखो इसमें 2 कंडीशंस है और ये एमसीक्यू पीआईएमपी एमसीक्यू यहाँ पे एक एमसीक्यू आएगा आपको. An alternating UN is said to be absolute convergence if mod UN is convergent. mod UN जर convergent असेल तर त्याला काय म्हणायचं absolute convergence. आणि जर mod UN is divergent and UN is convergent, if आपको क्या करना है चेक करना है, क्या चेक करना है mod UN को चेक करना है. अगर mod UN convergent है तो यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो बाय यूजिंग डेफिनेशन डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि उसको क्या है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है. कब है अगर मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट है. बट अगर कुछ एग्जांपल में अगर ऐसा आ गया कि मॉड यूएन इज डाइवर्जेंट है, मॉड यूएन डाइवर्जेंट है तो आपको क्या करना होगा यूएन चेक करना होगा. तो यूएन क्या चाहिए कन्वर्जेंट चाहिए. अगर ऐसे मॉड यूएन डाइवर्जेंट है और यूएन कन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या होगा कंडीशनली कन्वर्जेंस. इसका मतलब क्या होगा वो कंडीशनली कन्वर्जेंस होगा. आया समझ में. सिंपल है मॉड यूएन को चेक करना है. मॉड यूएन कन्वर्जेंट देन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट. मॉड यूएन इज डाइवर्जेंट देन check UN is convergent. If UN is convergent then conditional convergence. झालं का लिहून. हॅलो कोण लिहून घेते का नाही का. नेक्स्ट पॉईंट घ्यायचा. येस सर नो. झालं सर. ओके
रिमार्क है, if un is absolute convergence then un is always convergence. सॉरी यहाँ पे लिखो mod un, नहीं un भी चलेगा, un ही है। यहाँ पे देखो, if un is absolute convergence then un is always convergence. जर तो absolute convergence असेल then un is always convergence, तो convergence असणारच आहे 100%. लिहून घेते रिमार्क एक. Examine whether the series is absolute and conditional convergence. अब फर्स्ट क्या है, 5 minus 10 by 3 plus 20 by 9 minus 40 by 27 plus. ओके, चेक क्या करना है, फर्स्ट मॉड यूएन चेक करना है. सब में देखो 5 क्या है, कॉमन है. यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो 5 को कॉमन निकाल दो. 5 in bracket 1 minus 2 by 3 plus 4 by 9 minus 8 by 27 plus and so on. Okay, taking mod on both sides. Consider mod un is equal to, अभी mod लिया तो सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव का सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, 1 plus 2 by 3 plus 4 by 9 plus 8 by 27 plus and so on. नेक्स्ट क्या, यहाँ पे क्या है देखो, 2 by 3 का रेस टू 1 है ना. यहाँ पे देखो क्यूब है, इसके बाद क्या होगा, 4 तो होगा ना. तो 2 by 3 raised to 0, 2 by 3 raised to 1, 2 by 3 raised to 2, 2 by 3 raised to 3 plus and so on. देखो यहाँ स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो यहाँ पे क्या है 0 1 2 3. देखो अब फर्स्ट ए स्टेप समझ में आया ना, क्या क्या है यहाँ पे देखो. 1 मतलब 2 by 3 raised to 0, एनीथिंग raised to 0 की वैल्यू क्या आती है 1. तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 4 है, 8 है. आप अगर देखेंगे ना 2 4 8, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे स्क्वेयरिंग हो रहा है, उसके बाद क्यूब हो रहा है 2 का. डिनोमिनेटर में सिर्फ वहाँ पे भी वैसी है. तो 2 by 3 raised to 0, 2 by 3 raised to 1, 2 by 3 raised to 2. हाँ यस सर. I will take 1 minute only. ओके सर. Okay. For this semester second total, how many subjects are there? किती आहेत एकूण? How many subjects are there for semester 2? Anyone? I will read the names. First is engineering chemistry. Second subject 6 are there, na? Okay, I will read the names. These 6 names. Engineering chemistry, first one. Second is engineering mathematics 2. Third subject is BEEE. Fourth is PPS. Fifth one is engineering graphics and CAD. And sixth subject is professional communication. Okay, one more seventh subject is there for the semester second only. The name of this seventh subject is democracy, elections and good governance. Okay, check your Telegram channel for notes of these 7 subjects. Okay, and I can discuss with your class CC also regarding about this subject. And for this 7th subject, democracy, elections and good governance, ES is there, 50 marks ES is there, 50 marks end semester exam is there. Okay, for this last subject, democracy, elections and good governance. Please start study of this subject also, this democracy, elections and good governance. Okay. Kadam sir. Okay. Okay, continue. Okay. ओके, तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती हे केलेलं आहे सरांनी पाठवलेले फोटो पाठला, त्यावरून ते तुम्हाला दिलेलं असेल. तर डेमोक्रॉसी म्हणून एक सब्जेक्ट आहे नवीन, 50 मार्क्स
50 मार्क्स साठी आहे तो सब्जेक्ट है, उसमें 50 मार्क का वो सब्जेक्ट है और उसकी ऑनलाइन एग्जाम होगी, उसकी भी डेमोक्रेसी, तो उसके लिए नोट्स भी आपको अवेलेबल किए हैं। ओके, तो उसको भी थोड़ा सा कभी कभी इसमें स्टडी कर दो उसका बीच बीच में, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो फेल गया तो काउंट होता है, फेल होने के बाद सब्जेक्ट भी काउंट होता है। सर लेक्चर आहेत का त्याचे? हां, ते लेक्चर नाहीत आपल्या डेमोक्रेसी म्हणजे काय असणार आहे, इलेक्शनबद्दल वगैरे माहिती असते विचारतात. इथं वाचून बघा, तुम्हाला समजेल किंवा आपण एखाद्या वेळेस काय करू, एक्झाम कधी आहे ना त्याच्या एक वीक अगोदर आपण त्याचं सिलेक्ट थोडंसं स्टडी करूया त्याचा. डेमोक्रेसी बद्दल असते, फक्त इलेक्शन वगैरे असतं ना त्याच्याबद्दल आहे. ओके, माझं काय असणार आहे, 0 1 2 3 आहे ना, 0 आहे, 1 आहे, 2 आहे, 3. आता nth रूट टर्म कसं करणार, nth टर्म कशी फाइंड करणार आपण इथं, बाय युजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. a इज इक्वल टू काय 1 आहे, डी इज इक्वल टू डिफरन्स किती याच्यामध्ये 1 डिफरन्स आहे ना. फॉर्म्युला काय असतो, हां काय फॉर्म्युला तुझा, A plus D सर. ए प्लस, हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालोगे आप, कैसे फाइंड करोगे इसको nth टर्म, अगर आपको nth टर्म ही नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं आएगा. हाँ बताओ, 1 प्लस A plus n minus 1 into D. n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला nth टर्म फाइंड करने का, इसका सीक्वेंस का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे n माइनस 1 पुट करने के बाद देखो यहाँ पे 2/3 और पावर में n माइनस 1 है. 2/3 मतलब वो क्या है, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज. देखो ज्योमेट्रिक सीरीज में रेशो होता है ना, अगर रेशो लेस देन 1 है तो क्या होता है वो कॉन्वर्जेंट. देयरफॉर mod un इज कॉन्वर्जेंट. अगर mod un कॉन्वर्जेंट दैट इम्प्लाइज देखो इसके बाद यहाँ पे देखो बाय ज्योमेट्रिक सीरीज mod un इज कॉन्वर्जेंट. क्यों कॉन्वर्जेंट है, क्योंकि mod r is equal to 2/3 it will less than 1. Therefore un is summation un is absolutely convergent. un is absolutely convergent. तो पाऊस चाललेला आहे. लिहून घ्या.